Good afternoon. I'll just get the file. Can you see the file? So we have done most of the things about the basis of classification. Okay? We were on one of the last topics, that is segmentation. Okay? I'll just go back to segmentation. Okay? So segmentation means division of the body into different parts. Metamerism means वो parts के अंदर there are serial repetition of different parts. So when the body is divided, we say it is segmented. And agar segments mein there is repetition of parts, then we say that the body is metamerically segmented. Now, each such segment is called a metamer. Means there is repetition of certain parts in the body. It is not necessary that all the parts will be repeated. किसी में nuclei develop, groups of neurons are repeated. किसी में nerves are repeated. In some animals, blood vessels are repeated. In human beings, जैसे हमने बताया था, the ribs are repeated in some segments. It is not necessary that it will repeat in all the segments. Okay, ये segmentation से फायदे क्या होता है? So what are the advantages of the segment? One, it allows free movement and bending without injuring the internal parts. Okay, because जैसे अर्थवर्म है, अगर वो one piece होता and if it has to curve its body, तो ये जहां पे कर्व आएगा वहां पे that internal part will get injured. But when the body is segmented, so the whole body does not curve, but each segment will curve thoda 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 thoda. So between two segments the bending is very less. वैसे ही हमारे body में, for example, if I want to bend to one side, I can bend significantly, काफी bend कर सकता हूँ. लेकिन between each vertebra अगर देखेंगे तो जो bending is very little. उससे क्या होता है that the muscles, वहाँ के blood vessels, वहाँ के nerves पे pressure, वो bending का pressure नहीं आता है. Okay? So first is segmentation allows free movement without injuring the internal parts. No voice. Wait. Who has voice problem? Anybody else has no audio? Rushikesh. Others are able to hear? जिसको सुनाई देता है वो yes बोलो. Those who can hear, yes. Okay, so most of the people are able to hear. So Rushikesh, Sagar, whoever, आपके तरफ तकलीफ है. Thank you. So the problem is not on my side. Okay, so one, segmentation allows free movement of the animal without injuring the internal parts. Second,
better division and distribution of internal structures like the nerves, blood vessels, etc. Okay, तो अगर एक ही लंबा ऑर्गन है जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, ओके, तो उसमें पार्ट्स है तो उसका मेंटेनेंस इजी पड़ता है. अगर वर्टिब्रल कॉलम वन पार्ट होता और उसमें से एक जगह पे इंजरी होती तो फिर पूरे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉब्लम होता. बट नाउ बिकॉज देयर आर डिफरेंट वर्टिब्रा, तो एक वर्टिब्रा इंजर हुआ तो भी द रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रा आर एबल टू फंक्शन. ओके, सेम विद ब्लड वेसल्स. अगर हमारी बॉडी को एक ही बड़ा ब्लड वेसल होता तो ब्लड वेसल में अगर इंजरी होती है तो फिर द होल सिस्टम गेट्स अफेक्टेड. बट यहाँ क्या है, द ब्लड वेसल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, सो एवरी सेगमेंट गेट्स अ डिफरेंट ब्लड वेसल. तो एक सेगमेंट में इंजरी होती है, still all other segments will continue to function. Okay, yeah. Then allows for regeneration in some animals. जैसे मैंने बताया अगर एक पार्ट डैमेज हुआ है तो मे बी दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज नॉट फंक्शनिंग बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज फंक्शनिंग. प्लस ये जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है उसमें द सेगमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेन बॉडी. तो ब्लड सप्लाई अगर आपके सेगमेंट के लेवल पे आर्टरी को डैमेज हुआ है तो ब्लड सप्लाई कैन स्टिल कम फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल आर्टरी. ओके, नर्व सप्लाई आपके लेवल पे डैमेज हुआ है बट स्टिल देयर इज नर्व सप्लाई व्हिच कैन कम फ्रॉम अदर सेगमेंट्स. सो वन सेगमेंट व्हिच इज damaged or injured, that will get time to regenerate, and while it is getting regenerated other neighboring segments can help. तो वो भी एक फायदा है. ठीक है, these are the advantages of having segmentation in the body. Free movement without injuring parts, distribution of important structures, and allows time for regeneration if one segment is injured. Okay. Now, what is metamerism? True metamerism, it means serial repetition of different parts in different segments. तो अगर समझो अर्थोम में 100 सेगमेंट है बट वो 100 में से अराउंड 80 सेगमेंट्स में उसका स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट इज कॉल्ड नेफ्रीडिया, दैट नेफ्रीडिया इज रिपीटेड इन ईच सेगमेंट. सो हर एक सेगमेंट के लिए एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. वैसे ही हर एक पार्ट, हर एक सेगमेंट के लिए स्पेशल नर्व्स है. सो दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, वेयर देयर इज रिपीटेशन ऑफ पार्ट्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स. ठीक है, नाउ द थ्री टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन हमने देखा है. एनिलिडा में कंप्लीट सेगमेंटेशन होता है बाहर से भी और अंदर से भी. ओके, व्हाट इज होमोनोमस मेटामेरिज्म? When the segments are such that the same parts are many same parts are repeated again and again, which means each segment is very similar to the next segment. एक जैसा लगता है segment because हर एक segment में similar parts are repeated. So ऐसे segmentation को homonomous segmentation कहते हैं. Okay, now this is possible in earthworm. Next is arthropods. Arthropods में हमने बताया था that exoskeleton is segmented from outside, but inside the body is like one whole cavity called the hemocoel. So there is mainly external segmentation and metamerism. Okay. Now, what are the examples of parts which are repeated in the cockroach? For example, the cockroach or the arthropods have got multiple hearts. उनका heart हमारे जैसे efficient नहीं होता है. So one heart is not enough to pump all the blood. So they have got multiple hearts. Okay. So हर एक segment में there is a separate heart. Now together they are joined to each other. लेकिन पंपिंग करने के लिए सब 13 हार्ट्स मिलके ब्लड को पंप कर पाते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअली दे आर इनएफिशिएंट. देन आर्थ्रोपोड्स में स्पाइरिकल्स होता है. स्पाइरिकल्स आर होल्स इन द साइड ऑफ द बॉडी जिसके थ्रू उसका ब्रीदिंग होता है. सो दे आर आल्सो रिपीटेड इन डिफरेंट सेगमेंट्स. ठीक है. देन न्यूरल गैंग्लिया. गैंग्लियन मीन्स अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. So you will have different segments in the arthropod, and हर एक segment के लिए there will be a group of neurons which are doing the work. Okay. Same with muscles.
हर एक सेगमेंट के लिए अलग मसल्स है. So this is example of the parts which are repeated in arthropods. Now one example I will give you, that is the legs of arthropods. Now arthropods में there are insects which are called hexapoda. Hexa means 6 legs, and 6 legs means 3 pairs of legs. So hexapoda or insects like cockroaches, they have 3 pairs of legs, and we can say that the legs are repeated in 3 segments. ओके अगर आपको अंदाजा होगा तो उसके लेग्स जो होते हैं वो अपने बॉडी के आगे की तरफ अटैच्ड होते हैं इन द थोरैक्स पार्ट. सो द लेग्स आर रिपीटेड इन द थोरैक्सिक सेगमेंट्स. बट यू विल फाइंड दैट पूरा एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते, वहां पे लेग्स नहीं होते. ओके yet we will call it metamerism, but there is metamerism only in the thoracic segments when you consider legs. When you consider the heart chambers, तो 13 चेम्बर्स है, मतलब 3 होते हैं फॉर द थोरैसिक सेगमेंट्स और 10 होते हैं फॉर द एब्डोमिनल सेगमेंट्स. सो देयर आर 13 हार्ट्स. So when we talk about the heart, we have to say that for the heart, the cockroach is metamerically segmented. For the heart means the heart is repeated. Okay, why I'm telling you this, कि every organism में कुछ parts होते हैं जो repeat होते हैं और कुछ parts हो जो नहीं होते. Even if 2 or 3 parts are repeated, we will say that the organism is exhibiting metamerism, means repetition of parts in different segments. Okay, last and most important is chordates. Chordates means from fish onwards, fish, amphibians, reptiles, mammals and birds, we all are segmented internally. और हमने बात किया था the vertebra, the ribs, the nerves, myotomes. Myotomes मतलब muscles plus nerves, और nerves plus उसके जुड़े हुए muscles. These are myotomes. So they are also repeated in each segment. Okay? लेकिन ऊपर से क्या होता है, the skin or the scales or the body hair, they will hide the segments. So we can say that the segments are hidden or camouflaged by the skin. They are called camouflaged by the skin. Okay, but actually there is segmentation as well as metamerism. Okay, but externally you may not be able to see the segments. I hope सब लोग ने सलमान खान को देखा होगा flouting his 6 packs, है ना. So when you see the abdomen of Salman Khan, you will realize that body पे actually segmentation होता है ना. But people like me, if we have too much fat on the abdomen, तो अंदर वाले जो segmented muscles है वो नहीं दिखते because there is a covering of skin and fat. So in many of us, our internal segmentation is not seen. But in people who are very fit and muscular, you can easily see the segmentation. Okay. Now again, one tricky thing. There is a concept called pseudo segmentation. जैसे हमने देखा था कि सीलोम में यू सीलोम होता है, that means a true coelom or a body cavity, and there is a pseudo coelom, means a coelom which is not a true coelom. वैसे ही in segmentation also there is a type of animal, that is tapeworms, which are segmented but the segments are not considered true. Well, I will just show you that figure 1 minute. Okay, I'm going to the net, I'll show you that figure. One minute.
Can you see my internet search? इंटरनेट में ये वर्म दिख रहा है इंटरनेट वाले सर्च पे गूगल पे. Okay, so now if you see, this is a tapeworm. It is a type of a flatworm जो बहुत लंबा होता है और हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट है. So it lives in the intestine of man and some other mammals. If you will see the structure, तो the first segment जो उसका लग रहा है, first part of the body, it has got a head and a body which is called the scolex. Okay, after that you will see that there are multiple segments on the body. Okay, now when the worm is born, it is only so much. उसका head और main body होता है. There are no segments attached. मतलब जो उसका young worm होता है उसमें there are no segments attached. The body of the worm is only so small. But once it matures, then what happens? उसके body में से by mitotic division more segments are added. It is not that कि पहले body बनता है और body में segments बनते हैं. That is how it happens in all other animals. उनकी body बनती है और body में फिर divisions बनते हैं. Which means the different segmented the segments are part of the same body. लेकिन इसमें क्या होता है? The body is only so much, the head and the scolex. But from the lower end of the scolex, new segments are added by mitotic division. Now each of this segment is called a proglottid. Proglottid, P-R-O-G-L-O-T-T-I-D, proglottid. And although they are attached to the main body, physiologically they are independent. They are not dependent on the main organism for their food, nutrition, etc. ऐसा क्यों होता है? Because चाहे वो main part of the worm हो या चाहे segment हो, if you can realize the outer body wall or the skin is very thin and almost transparent. It allows diffusion of substances across the skin. तो ये worm जब intestine में होता है तो उसका खाना आता है by taking digested food material by diffusion into the body. तो जो मेन बॉडी है वो भी डिफ्यूजन से खाता है. the worm is attached to the wall of the intestine. उसके पास सकर्स होते हैं एंड हुक्स होते हैं जिससे वो वॉल ऑफ द अटैच इंटेस्टाइन में अटैच करता है. बट दिस वर्म डज नॉट हैव अ माउथ. It does not have a mouth, so it cannot suck blood. It can attach to the intestinal wall. Okay, लेकिन for the main body also nutrition comes by diffusion from the outer body wall. हमारे ही digested food substances वो absorb करके by diffusion वो अपना nutrition पूरा करता है. Same thing is done by each segment. हर एक segment अपना अपना nutrition by diffusion ले सकता है. फिर हर एक segment में excretory products भी पैदा होते होंगे. So they are also excreted by diffusion from the body wall. Okay, then हर एक segment में energy लगती होगी. That energy or ATP is produced by anaerobic respiration, and each segment has got अपना anaerobic respiration के लिए enzymes. तो खाना diffusion से आएगा और उसी खाने को वो anaerobically it can digest and utilize it for energy. And the most important, हर एक segment में दोनों टाइप के गोनाड्स भी होते हैं. मतलब टेस्टिस भी होते हैं और ओवरी भी होती है हर एक सेगमेंट में. Every segment has both the gonads, which means each segment can produce ova and sperms. फिर अंदर ही अंदर they fertilize करके the eggs will grow. The fertilized eggs will grow in size, and then the segment will burst. The mature or the pregnant segment will burst. Once it bursts, then the eggs are released into the outside intestine, and then new worms will develop. Which means अपना खाना, अपना breathing and respiration, production of energy, reproduction, excretion, everything the segment can do on its own without any connection or dependence to the main body. Okay, अगर main body से connected नहीं है, then we say it is not a true segment.
अगर इंटरनली ब्लड वेसल्स है या नर्व्स है या कुछ अंदर से जाता होता, देन वी विल से दैट इज अ ट्रू सेगमेंट। ओके, एनिलिड्स में आप देखोगे कि उसका हार्ट, दे गॉट मल्टीपल हार्ट्स, एनिलिड्स में भी मल्टीपल हार्ट्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल सेगमेंट्स वाले जो हार्ट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल्स, सो वन हार्ट इज कनेक्टेड टू द अदर हार्ट टू द अदर हार्ट। सेम वे in annelids you will see arthropoda में that there are multiple spinal nerves, so nerves हर एक सेगमेंट के लिए अलग है, लेकिन at the base they are connected to the spinal cord and that cord is continuous. Okay, so when you say a segment is true when it is connected with the main body functionally, at least functionally connected with the main body, then it is a true segment. यहाँ क्या है, each proglottid is independent and functionally it is not dependent on the main body. वो अपना अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस खुद कर पाता है, इवन रिप्रोडक्शन खुद कर पाता है. So this kind of a segment is not a true segment. Okay, and the only animal where you will find this is the tapeworm. ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस या फ्लैटवर्म्स अलग अलग तरह के होते हैं, बट दे आर यूजुअली अनसेगमेंटेड. जैसे ये मेन बॉडी अनसेगमेंटेड है, only this type of worm, this is called the tapeworm, uska technical name is Taenia. So they are only the only animals in the whole animal kingdom we have which have got pseudo segments. Okay, now your questions, is this hermaphrodite? Yes, because it will have both the gonads. Not only the organism is hermaphrodite, but each segment is hermaphrodite because each segment can reproduce independently by sexual reproduction, and each segment will have both gonads. So each segment is also hermaphrodite. If we cut it into two parts, will the parts live independently? No. Okay. If you cut this segment, this worm here, then the upper part will survive. Upper part will survive indefinitely because upper part में सब organs है, उसका brain है, उसके circulatory system है. तो जब तक ये segments है, the body will survive. Now what about the remaining segments? इसके 10 टुकड़े कर दिए तो each segment will survive. Each segment will survive, but it will not regenerate into a new worm. लेकिन अगर आप यहाँ से काटोगे, then because the main body is preserved, so new segments वापस बनते रहेंगे. लेकिन अगर आप यहाँ से काट दो तो नीचे वाले segments they will survive because they can get their nourishment, food, respiration, ATP production, reproduction, सब कुछ कर सकते हैं. So they will not die. The only thing is because they are not attached, only the head is attached, the main body is attached to the intestine. तो अगर यहाँ से टूट गया, ये आपने काट डाला, तो intestine में food के साथ वो बह जाएगा, but the main body will remain attached to the intestine, so it will survive for longer. Okay, yeah, tapeworms are harmful for us. Yes, to some extent they are harmful, लेकिन the main advantage is कि उसके पास अपना खुद का माउथ नहीं होता है, तो it cannot suck blood. Nematodes भी हमारे worms है, we have round worms in the stomach. उनके पास जो suckers होते, they have a mouth with it and they will suck our blood. तो हमारे body में anemia करते हैं. But ये tapeworms do not suck our blood. वो अंदर बैठे रहते हैं लंबे लंबे, they can grow up to 2 meters. Okay, उसका जो स्कोलेक्स मेन बॉडी होता है सिर्फ 2-3 इंच का होता है, लेकिन the whole worm can grow up to 2 meters also, and it will have hundreds of proglottids, all pseudo segments. ठीक है, फिर ये बार बार टूटता भी है, हमारे पेरिस्टालसिस की वजह से उसका बॉडी टूट भी जाता है, तो वो वापस बनाएगा. ओके, द मेन रीजन फॉर मेकिंग द प्रोग्लॉटिड्स इज बिकॉज नेचर में पता है कि उसको सरवाइव करना है तो उसको बहुत सारे प्रोजेनी या बच्चे पैदा करने पड़ेंगे. ओके, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर आवर डाइजेस्टेड मटेरियल. वो अपने पास सकर्स है लेकिन वो खून चूस नहीं सकता है. तो नेचर ने कैसे कॉम्पेंसेट किया ये उसका स्पीशीज कंटिन्यूटी के लिए, उसको बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स दे दिए विच आर इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स.
बट दे कैन रिप्रोड्यूस। सभी के बॉडी में होता है क्या? नो, बच्चों में अक्सर होता है, बिकॉज स्मॉल किड्स टेंड टू कॉन्टेमिनेट देयर हैंड्स। उनके हाथ इधर उधर मट्टी में, घास फूस में, अपने खुद के स्टूल से गंदे होते हैं हाथ, और फिर वो हाथ मुंह में डालते हैं। दे कैन ड्रिंक कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ओके, so the mode of infection is via water and food. So usually you will find it more commonly in children. Worm infection, worms kids में ज्यादा होता है। हाँ? बच्चे बड़े होते हैं तब उसको हम बच्चे नहीं बोलते ना, तब उसको एडल्ट बोलते हैं। तो एडल्ट्स में हो सकता है, लेकिन कम होता है। वन, बिकॉज दे आर एबल टू मेंटेन हाइजीन, एंड सेकेंड के एडल्टहुड में थोड़ी बहुत इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। बट किड्स के नॉट किल द वर्म्स। अगर वर्म्स अगर हो गया बच्चे के पेट में, तो यूजुअली उसको दवाई दिए बिना अच्छा नहीं होगा। ओके, देयर आर मेरा मेनी वायरल इन्फेक्शंस, मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होता है और फिर अपने आप भी अच्छा हो जाता है। मे बी इफ यू गिव मेडिसिन दे विल गेट बेटर फास्टर, बट इवन विदाउट मेडिसिन दे कैन, यू कैन रिकवर आफ्टर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। लेकिन एक बार आपको वर्म इन्फेस्टेशन हो गया तो फिर रिकवरी मुश्किल है, एंड यूजुअली नहीं होती है जब तक आप दवाई लेके इसको वर्म्स को मार न डालो। ओके, सो दिस इज स्यूडो सेगमेंटेशन। ओके, 1 minute। I'll go back to the notes। क्या हो रहा है? Yes, they can be killed actually। the medicine paralyzes them। तो उनके मसल्स यूज नहीं कर सकते, तो वो अटैच नहीं रह पाते। और अगर अटैच नहीं रह पाएंगे तो फूड और पेरिस्टालसिस के साथ 1-2 दिन में निकल जाते हैं आफ्टर यू टेक मेडिसिन। नाउ कैन यू सी द स्लाइड? कैन यू सी द स्लाइड? ओके। ओके, सो यहाँ टेपवर्म्स और उसका स्यूडो सेगमेंटेशन के बारे में लिखा है। प्रोग्लोटिड्स, दे आर नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बचपन से वो सेगमेंट्स नहीं होते। वो वर्म एडल्ट होता है उसके बाद वो नए सेगमेंट्स पैदा करता है। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल बॉडी। ओके, मेनी रिपीटिंग सेगमेंट्स आर देयर। Many repeating segments are there for reproduction and for nutrient exchange. Each segment acts independently, hence it is not considered true metamerism or true segmentation. Not true segmentation. Okay. 1 minute. Okay, so I hope you have understood what is pseudo segmentation. A true segment means it is the part of the main body, और अगर वो सेगमेंट हट गया, निकाल दिया, मर गया, तो एनिमल के हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा। कभी कभी एनिमल मर भी सकता है। okay? But in pseudo segmentation, the segments are independent of each other, और 2-4 क्या 50 सेगमेंट को भी हटा दो तो भी एनिमल को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, these tapeworms enter the body via food and water, contaminated food and water। ठीक है, so that is about pseudo segmentation। ऊपर हमने किया था, we had done the topic of homonymous metamerism। Now we are doing other metamerism, that is heteronomous metamerism। हमने बताया था that in annelid many segments are exactly similar to each other, so it is called homonymous metamerism। but अगर आप कॉकरोच देखोगे, फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, तो उसके हेड में 5 सेगमेंट होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं फ्रॉम द thoracic segments। there are 3 thoracic segments and there are 10 abdominal segments।
ओके, 11 होते हैं बट एम्ब्रियो में, लेकिन एडल्ट में एक गायब हो जाता है. सो 10 और 11 segments. Now the head segments are totally different from the thoracic segments. The thoracic segments are totally different from the abdominal segments, which means the segments are very different from each other. बाहर से भी अलग दिखते हैं और अंदर भी अलग से होते हैं. तो ऐसे सेगमेंट्स को बोलते हैं हेटेरोनोमस मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन. ओके, so that is about segmentation. Okay. Now we are going to back to one of the above topics, that is the different types of circulation, open circulation and closed circulation. बट वो हम करेंगे ब्रेक के बाद. ठीक है. So now it is 3:36. We will meet at 3:45. Later 10 minutes break and we will start with different types of circulation. ठीक है. आज जो भी मैं सिलेबस कवर करूंगा उतना सिलेबस आपके संडे एग्जाम में आएगा. नो, फॉर द टेस्ट एंड फॉर योर नीट आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और मेरा नोट्स पढ़ना पड़ेगा. उसके अलावा बाहर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी एंड नोट्स. ओके. यूजुअली नथिंग विल कम फ्रॉम आउटसाइड. या एनी टेस्ट, अगर मेरा टेस्ट है वो चाहे मेगा टेस्ट हो या नीट टेस्ट हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द नोट्स. फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए. अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो अलग अलग नजरिया मिलता है. अंडरस्टैंडिंग बिकम्स डिफिकल्ट. Yeah, I have got NCRT PDF. I will send it to you. Yeah, please remind me. I will send it to you. Yeah, NCRT में एक्चुअली इंफॉर्मेशन कम है. एंड मैंने शुरुआत में बताया था कि एनसीईआरटी में फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. उसके बाद जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, फॉर एग्जांपल जब डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, तो सम पॉइंट्स अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स वहां पे दिया है. फिर आप 12वीं में एक चैप्टर करोगे इवोल्यूशन, कि एनिमल्स इवॉल्व कैसे हुए, तो वहां पे भी आपको एनिमल्स का कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा. ओके. सो दैट इज द प्रॉब्लम विद एनसीईआरटी. हर एक चैप्टर में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट में से इकट्ठा करना पड़ेगा. एंड यू डोंट हैव टू ट्राई टू डू दैट. वी आर डूइंग इट फॉर यू. इसलिए एनसीईआरटी भी पढ़ना है, लेकिन फाइनली यू हैव टू डिपेंड ऑन द नोट्स राइट नाउ. ठीक है. ये नोट्स मैंने ऑलरेडी भेजे, मैं अभी वापस भेज रहा हूँ. एंड वी विल मीट एट 3:45. ओके. एंड फ्रॉम टुडे यू विल हैव असाइनमेंट्स. तो मुझे मंडे को नहीं दिखाना है. आज आज शाम को ही आपको असाइनमेंट खत्म करना है एंड आपको भेज देना है ग्रुप पे. एंड प्लीज व्हेन यू राइट द असाइनमेंट्स, वी आर डोंट थिंक दैट इट इज एन ऐसे कंपटीशन. लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में आंसर करना है. लेकिन अगर मैंने फिगर ड्रॉ करने को बोला है तो उसको अच्छी तरह लेबल करना है एंड अच्छा करना है. बिकॉज व्हेन यू ड्रॉ फिगर्स यू विल रिमेंबर इट वेरी वेल. आप टेबल्स बनाओगे या फ्लो चार्ट बनाओगे या ड्रॉ करोगे तो यू विल रिमेंबर इट वेरी वेल. ठीक है. सो वील गो ऑन अ ब्रेक. यू कैन टेक अ ब्रेक. मैं नोट्स भेज रहा हूँ.
You got eucalyptus oil? एक ही बंद नहीं कर रहे हैं लेकिन काम चार काम यूज कर रहे हैं यूcalyptus हाँ वही चाहिए उसको फंगस चालू चालू हो गया कैसे मिली बैरल के वो आपके समझ made that face as well. इधर ही मिलेगा मेडिकल Hey, I went to theater after we met Shyam. उसके बाद मेरी एग्जाम दे रहा था वहाँ से I didn't know that. Very and then they got asked me to theater में खाना and I was on call with Ashley. So she suggested something and I wanted something. I ended up getting both. Like चलो I haven't had theater when age is ना एक बार सुनते जाता है. I got it. First thing what I wanted was खा लिया. It's too sweet. I can't finish everything. I need to share it with someone. I just called him Rachna. Rachna phone me. Let's get back. Back call me. You wanna have chocolate mousse? मतलब हम ट्रेन के बाहर हो. I have chocolate mousse cup. उसके जॉब को स्टार्ट आगे फिर she doesn't want to stay बट किधर इधर इंडिया में या so they wanna go home about it why they don't want to do it expensive and they are very difficult choice for them that way. And नील का तो अच्छा है उसको एक साल अब्रॉड मिला एक साल इंडिया में यूरोप में वन ऑफ द फोर सिटीज में बर्लिन लंदन एंड एक और कोई सिटी इन चारों में से मेरे को भी कैंपस मिलेगा एक साल you couldn't have done that but then इंडिया में काम नहीं करना ना you come back to India and इंडिया में जाओ or if he gets picked up or then the likelihood of that is less मेरे केस में उनको 3 साल मिल ही जाता है ना और आई तो want to work क्रॉसिंग भी लाना है कृष्णा अच्छा
1 minute. Can you see the slide? लास्ट ईयर का 2020 का एडिशन लेना है, सब लोग ने एक ही लेना है। 2021 का मुझे पता नहीं है, लेकिन 2020 का भी लिया तो काफी है। ओके, बट ऑल ऑफ यू टेक द सेम वन बिकॉज वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम फिंगरप्रिंट्स। तो आपका अगर एडिशन बदल जाएगा तो फिर हमारे नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस बदल जाएंगे जब हम डिस्कस करेंगे तो। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक 2020, लेकिन एनसीईआरटी हो सके तो लेटेस्ट लेना। और कोई बुक नहीं लेना, ओनली एमटीजी फिंगरप्रिंट्स, एनसीईआरटी और मेरा नोट्स। देयर नो नीड ऑफ रीडिंग अदर बुक्स। आपको वंस इन वाइल मूड आता है बाहर से पढ़ने को तो आप इंटरनेट पे जाओ, विकीपीडिया में से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बट डोंट रीड अननेसेसरली अदर बुक्स। हमको पीएचडी नहीं करनी है बायो में, हमको नीट में स्कोर करना है। ओके, तीन जगह पे काम चल रहा है एंड ओनली नोबडी सेलिंग। किसके यहाँ हो रहा है आवाज? आई एम गेटिंग द फाइल, 1 minute. Okay, now we'll do that topic which we had left, and that is different types of circulation. Okay, now as you can see in the slide, different animals have different types of circulation. अगर हम पॉरीफेरा में देखेंगे तो देर इज नो प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका एक बॉडी कैविटी होता है, इट इज कॉल्ड स्पोंगोसील। खाना पीना सब कुछ उसी में होता है। दे डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सेम विथ एनिमल्स विच हैव अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। उनकी बॉडी में एक कैविटी होती है, नो हार्ट, नो ब्लड वेसल्स, नो सर्कुलेटरी सिस्टम्स। All exchange of nutrients, gases, waste happens through that one single body cavity which performs different functions, but they do not have a systematic body cavity or a systematic circulatory system. Now this is because उनका body small होता है या उनका body wall thin होता है. These are aquatic animals and their bodies internally and externally also they are into direct contact with the surrounding water. तो जो भी खाना लेना है उनको डायरेक्टली पानी में से मिल रहा है बाय डिफ्यूजन। गैसेस भी बाय डिफ्यूजन ऑक्सीजन ले सकते हैं फ्रॉम वाटर, एंड उसका नाइट्रोजन वेस्ट जैसे अमोनिया है दैट ऑल्सो कैन बी डायरेक्टली रिलीज इनटू द वाटर। उनको हर एक सेल को वो अपना अपना काम कर सकते हैं। सो देयर इज नो नीड फॉर अ स्पेशल सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। okay, but when you come from nematode onwards you will see that the animals are more bigger and they are more complex. उनकी बॉडी लंबी लंबी होती है, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती है, उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स इज मोर देन द प्रिमिटिव एनिमल्स। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एलिमेंट्री कनाल खाना ले रहा है तो मे बी द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर अवे फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल। सो वहां तक पहुंचाने के लिए खाना अलग अलग पार्ट्स तक। स्क्रीन इज ब्लैंक, 1 minute. 1 minute. Now you can see the screen.
कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ, ओके। एनीवे, अब तक मैं सर्कुलेशन जनरल बात कर रहा था. आई एम नॉट येट कम टू दिस स्क्रीन. ओके, सो व्हेन द एनिमल्स बॉडी इज बिग, देन इट विल रिक्वायर कि वन सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में चीजें भेजने के लिए उसको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. एंड द कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज यूज्ड इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, अब जनरली ऑन एन एवरेज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? देर आर वेसल्स और ट्यूब्स विच वी कॉल द ब्लड वेसल्स. एंड अगर एनिमल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा एक्टिव है या बहुत बड़ा है, तो ट्यूब्स सिर्फ होने से फायदा नहीं होता है. देन इट रिक्वायर्स ऑल्सो अ पंपिंग स्टेशन, दैट इज द हार्ट, टू पंप द ब्लड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, तो यूजुअली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में और वेरी एक्टिव एनिमल्स में एंड लार्ज एनिमल्स में you will require a circulatory system for the transport of different substances, oxygen, nutrients and waste. Okay, so now we are talking of those animals which have a circulatory system. Okay, so the first animal to have a proper circulatory system is the annelid. Annelid के पहले थे nematodes. Nematodes में body cavity थी pseudocoelom. अब वो pseudocoelom होता है या सीलम होता है, उसमें भी फ्लूइड होता है. And the coelom extends throughout the body from one end of the body to the other end of the body. तो उसमें भी कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है. बट द सीलोम का जो फ्लूइड है, इट कैन नॉट बी पंप्ड एक्टिवली. एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा नहीं जा सकता है. हाउएवर सम थिंग्स कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. So in some organisms, the coelom also acts as a system which will help in circulation, but it is not a true circulatory system. ठीक है. नाउ वी आर डिस्क्राइबिंग, ये हम डिस्कस करने वाले एनिमल्स विच हैव गॉट अ प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम. मींस इट हैज गॉट ट्यूब्स और वेसल्स टू कैरी द सर्कुलेटिंग फ्लूइड and it has a heart which will pump the circulating fluid. Okay, so the two types of circulatory systems are the open circulation जो लेफ्ट साइड में है and the closed type of circulation जो राइट साइड में है. ओके, अभी पहले राइट साइड का देखते हैं. क्लोज सर्कुलेशन, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्कुलेशन एंड वी फाइंड इट इन ह्यूमंस. आपको ह्यूमन सर्कुलेशन पता है तो आप ये जल्दी समझ जाओगे. अभी यहाँ पे क्या दिखाया है? दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of the circulation in advanced animals. It is called closed circulation. Now why it is called closed? अगर आप देखोगे तो there is a pump which is the heart and then there is an arrow which is going towards the left. So that left is a blood vessel. Blood vessel में खून दौड़ रहा है and then it is coming to the tissues और tissues में the blood vessel is dividing into capillaries. यहाँ पे 3 capillaries दिखाया है. वापस capillaries are joining and forming the venous system and the veins are going back to the heart. Okay, तो हमारे बॉडी में भी ऐसे ही है. हमारा हार्ट है, फिर उसका मेन ब्लड वेसल है एओर्टा. एओर्टा है जो अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाता है. लेकिन व्हेन इट रीचेस द ऑर्गन्स इट विल डिवाइड इनटू स्मॉल कैपिलरीज. कैपिलरीज में डिफ्यूजन से जरूरत की चीजें टिश्यूज तक पहुंचती है बाय डिफ्यूजन. और फिर टिश्यूज में से जो कचरा होता है या अननेसेसरी वेस्ट या फ्लूइड होता है वो वापस कैपिलरीज में आता है and it goes back to the heart via the veins. Okay, so in a closed circulatory system you have essentially 4 components. One is the pumping heart, then the blood vessels, that is the arteries, then you have the capillaries which are microscopic and the veins. ये 4 चीजें होती है. Okay, but if you know हमारा जो ब्लड होता है, blood goes to the arteries, goes to the capillaries, comes back from the veins, circulates to the heart. बट कभी भी हमारे टिश्यूज में ये जो ओपन स्पेस है उसमें ब्लड होता है क्या कभी? डज ब्लड एनी टाइम रीच द टिश्यूज? डू यू हैव ब्लड इन द टिश्यूज? हमने अगर हमारा टिश्यू को कट कर दिया
तो ब्लड निकलेगा, लेकिन अगर कट नहीं किया, इफ द टिश्यू इज इंटैक्ट, तो क्या उसमें ब्लड होता है? मेरा मतलब है कि ब्लड क्या सिर्फ ब्लड वेसल में ही होता है या ब्लड बाहर भी जाता है? Does the blood move out of the blood vessels and go into the tissues? Yes or no? नहीं, नो। वेरी गुड। तो फिर हमारे टिश्यूज को सब चीजें कैसे मिलती है? न्यूट्रिएंट्स, गैस एक्सचेंज वगैरह कैसे मिलता है? How do our tissues get oxygen? How do they get nutrients? By diffusion. Very good. Okay. So in a closed circulatory system, the blood never gets out of the circulatory system. Blood always remains in. लेकिन जब वो टिश्यूज तक पहुंचता है तो द कैपिलरीज आर पोरस, सो द प्लाज्मा, not the blood cells but the plasma and essential nutrients can be transported out by diffusion. फिर जब उसका इस्तेमाल हो गया और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बना या कुछ एसिड्स बने, मेटाबॉलिक वेस्ट बना, वो भी वापस लेने के लिए they will diffuse back into the capillaries on the venous end of the circulation and they will be carried back to the blood by the vein. So the most important is that the blood or the circulating fluid never comes into direct contact with the cells or tissues. Only the liquid component of the blood, that is plasma, will seep out or diffuse out and come into contact with the tissues. ये very important. दूसरा, अगर आप देखोगे तो the whole system is closed. Whenever you have a closed system, तो उसमें good level of pressure generate किया जा सकता है, गुड लेवल ऑफ प्रेशर जनरेट किया जा सकता है, जो ह्यूमन बीइंग्स में हम उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर अच्छी चीज है या बुरी चीज है, जरूरी है या नॉट यूजफुल? ब्लड प्रेशर इज गुड और बैड, एंड इज इट नेसेसरी और नॉट नेसेसरी? बोलो। ब्लड प्रेशर इज गुड एंड नेसेसरी और बैड एंड यूजलेस? व्हाई नेसेसरी? गुड, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, चलेगा। व्हाई इज इट नेसेसरी? ब्लड प्रेशर से तो कितने लोगों को तकलीफ होती है, हार्ट अटैक आते हैं, सर दुखने लगता है, तो व्हाई आर यू सेइंग इट इज नेसेसरी? Why is blood pressure necessary? Up to a certain limit. Very good. But for what job? Excellent. Very nice. कुछ हद तक ब्लड प्रेशर जरूरी है, बट क्यों? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो तकलीफ होगी, एग्री, लेकिन व्हाई डू यू रिक्वायर ब्लड प्रेशर? वेरी गुड, एक्सेलेंट ओम, वेरी गुड। जब ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है एंड आवर बॉडीज आर बिग, तो when there is more volume of blood and it has to go through the small arteries, it has to be pushed with pressure. नहीं तो ब्लड एक जगह पे पड़ा रहेगा। अगर आपको अलग अलग जगह पे पहुंचाना है तो यू हैव टू पुश इट विथ प्रेशर। ये जो पुशिंग प्रेशर है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द हार्ट और द पंपिंग प्रेशर। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट you can, if you have a closed system, then you can generate more pressure. If you can generate more pressure, then you can pump the blood with efficiency, and so we say that closed circulatory systems are very efficient. Okay, now we come to the left side figure. Here this is a type of an or a diagrammatic representation of an open type of circulation. यहाँ आप देखोगे यहाँ भी हार्ट है, हार्ट में से ब्लड निकल रहा है बाहर, तो दैट इज एन आर्टरी, और फिर कैपिलरीज की तरफ जा रहा है, लेकिन द कैपिलरीज आर एक्चुअली नॉट देयर, दे आर ब्रोकन।
which means the circulating fluid is coming out of the blood vessels and going into the tissues. Okay, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये जो ब्लड है उसको वापस सर्कुलेट होना है तो इट विल गो थ्रू द अदर ब्लड वेसल, बट नो, दीज आर नॉट वेन्स. यहाँ भी देखो एरो इसी तरफ आ रहा है. So these are also arteries. In fact, in this figure there are no veins and there are no capillaries. Capillaries थोड़े से दिखा है but actually वो भी नहीं होते रियल में. So how will the circulating fluid go back to the heart? Because उसको circulate तो करना है, pump तो करना है. That is because the heart will have openings and the circulatory fluid will go directly into the heart from the cavity of the body, from the tissues. Okay, so now let us see the differences. क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम में दोनों में हार्ट होते हैं, दोनों में आर्टरीज होती है. हाउएवर ओपन सिस्टम में देयर आर नो कैपिलरीज एंड नो वेन्स. ओपन सिस्टम में नो कैपिलरीज एंड नो वेन्स. In the closed system you have capillaries and veins. Okay, because there are no capillaries, so the circulating fluid enters and goes into the tissues and it is said it bathes, bathe, bathes the cell. Cell को directly नहलाता लाता है, मतलब उसके सेल्स ब्लड में ही या उसके सर्कुलेटिंग फ्लूइड में ही नहा रहे हैं. दे आर डायरेक्टली इनटू कांटेक्ट विद द सर्कुलेटिंग फ्लूइड. बट इन द क्लोज सर्कुलेशन blood never comes out of the capillaries, so the cells are never into direct contact with the blood. Okay, तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया. तीसरा, कैपिलरीज तो नहीं थे लेकिन देर आर नो वेन्स ऑल्सो इन द ओपन सर्कुलेशन, बट इन अ क्लोज सर्कुलेशन देर विल बी अ वेनस कंपोनेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. फोर्थ, हमने बताया था कि क्लोज सर्कुलेशन में because it is closed, so a high amount of pressure can be generated, so it is very efficient. However, ये open होने की वजह से हार्ट अगर ज्यादा पंप करेगा तो भी ज्यादा प्रेशर नहीं डेवलप कर सकता है, which means it is not a very efficient system. ठीक है. नेक्स्ट, इसका कंट्रोल या रेगुलेशन कैसे होता है, कितना जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना या कितनी बार हार्ट को पंप करना वगैरह कौन डिसाइड करता है. ओके, नाउ यूजुअली यू विल फाइंड कि the difference is not between open and closed, but the difference is between vertebrates and invertebrates. Advanced animals जो होते हैं जैसे vertebrates, usually they will have closed circulation और उनको हार्ट का फंक्शनिंग के लिए there is something called the SA node, the sinoatrial node अगर आपने सुना होगा, which is part of the heart. It is a modified muscle cell and that will generate the cardiac rhythm. हार्ट को बीट करवाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चाहिए, दे विल कम फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ, एंड बिकॉज दे कम फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ और फ्रॉम द मसल ऑफ द हार्ट, यूजुअली यू विल फाइंड दैट कॉर्डेट्स में सर्कुलेशन इज सेड टू बी मायोजेनिक बिकॉज द इम्पल्स कम्स फ्रॉम द मसल ऑफ द हार्ट. इनवर्टिब्रेट्स में यूजुअली आपको ओपन सर्कुलेशन मिलेगा except in Annelida. So Annelida is an exception. Annelida में closed circulation होता है. Otherwise जहां भी एनिमल्स में ओपन सर्कुलेशन है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में, तो उनका हार्ट में मसल्स तो होता है लेकिन उसको जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लगता है फॉर बीटिंग ऑफ द हार्ट, दैट कम्स फ्रॉम डिफरेंट नर्व्स. इट कम्स फ्रॉम नर्व्स, so the circulation is said to be neurogenic. So in vertebrates the circulation is myogenic, in invertebrates the circulation is neurogenic. Okay, usually chordates में you will have closed circulation. Of course biology में हमेशा कुछ ना कुछ exceptions होते हैं. So chordates will usually have closed circulation, non-chordates will usually have open circulation except Annelida, earthworms. Okay, so these are some of the main differences between open and closed circulation. ठीक है, अभी एग्जांपल्स दिए हैं किसमें क्लोज्ड है किसमें ओपन है. सी प्लीज रिमेंबर, फिगर में मैंने ओपन लेफ्ट साइड में किया और
क्लोज राइट साइड में किया है, लेकिन नोट्स में उल्टा हो गया है. ओके, सो लेफ्ट साइड में क्लोज है और राइट साइड में ओपन है. सो विच आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन सर्कुलेशन? पहले, सो आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स. ओके, बट मोलस्क्स में there is one group of animals, mollusks में, which are called cephalopods. Cephalopods मतलब the octopuses, sepia, loligo and that kind of animals जो octopus जैसे दिखते हैं. तो in the phylum of mollusk, one group of animals, that is the cephalopods, they have closed circulation. Okay, so arthropods and mollusks have open circulation. Then hemichordates open, echinoderms में open, and chordates में only one chordate, the पहला वाला most primitive chordate, that is urochordate, इसमें there is open circulation. Okay, in your exams you can be asked, out of the following, which animals have open circulation and which animals have closed circulation. अब which are the animals which have got closed circulation? First is annelids. Now annelids is the only invertebrate जिसके अंदर closed circulation है. Of course mollusk में cephalopods है, octopus like organisms जिसमें closed circulation होता है. अदरवाइज पूरा फाइलम देखे तो सिर्फ एनिलिड्स में आपको क्लोज सर्कुलेशन मिलेगा. अदरवाइज क्लोज सर्कुलेशन इज अ फीचर ऑफ कॉर्डेट्स एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा. तो ये आपको ये याद रखना है. नाउ व्हाट इज द सर्कुलेटिंग फ्लूइड कॉल्ड? तो अगर सर्कुलेशन क्लोज्ड है तो हम सर्कुलेटिंग फ्लूइड को वी विल कॉल द ब्लड. ओके, सो ब्लड वी विल कॉल इफ इट इज अ क्लोज सर्कुलेशन. लेकिन अगर ओपन सर्कुलेशन है, then the circulating fluid is mixing with the body fluid. तो it is neither blood neither it is like lymph. दोनों की प्रॉपर्टीज है. सर्कुलेटिंग ब्लड का भी प्रॉपर्टीज है उसमें और lymph का भी प्रॉपर्टीज है. So in that case it is called hemolymph. The circulating fluid is called hemolymph. Okay, parts ये हमने किया है. क्लोज सर्कुलेशन में हार्ट्स होते हैं, one or more hearts, you have arteries, capillaries and veins. लेकिन ओपन सर्कुलेशन में सिर्फ हार्ट और लार्ज आर्टरी होती है. देयर आर नो कैपिलरीज एंड वेन्स. देयर आर नो कैपिलरीज एंड वेन्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फ्लूइड विद द सेल्स एंड टिश्यूज. तो हमने देखा क्लोज सर्कुलेशन में blood never comes into contact with the tissues. They receive the nutrients by diffusion. लेकिन ओपन सर्कुलेशन में the blood, that is the hemolymph, comes into direct contact with the cells because वो जो बॉडी कैविटी होती है उनकी हीमोसील, उसी में सब ऑर्गन्स होते हैं एंड उसका सर्कुलेटिंग जो फ्लूइड है हीमोलिम्फ दैट ओपन्स आउट इनटू द हीमोसील और वो हीमोसील कैविटी के अंदर सब ऑर्गन्स होते हैं. So they come into direct contact with the circulating fluid, all the cells. Now movement occurs due to what? Movement मतलब movement of the blood or movement of the circulatory fluid. Okay, now in closed circulation the movement of the fluid is because of muscular action of the heart. हार्ट पंप करेगा तो होगा. वैसे ही ओपन सर्कुलेशन में भी मस्कुलर मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट होता है, लेकिन ये इनएफिशिएंट होता है, इसलिए इट विल रिक्वायर हेल्प फ्रॉम अदर मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच ब्रीदिंग करता है अपनी बॉडी के मसल से, तो जब ब्रीदिंग के मूवमेंट्स होते तब भी उसका प्रेशर जो जनरेट होता है उससे थोड़ा ब्लड में मूवमेंट आएगा. ओके, सेकेंड, इन सम एनिमल्स, जैसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, व्हेन दे मूव, व्हेन द एनिमल मूव्स तो अंदर प्रेशर चेंजेस होते हैं एंड दैट विल हेल्प इन सर्कुलेशन.
Okay, so in closed circulation, it is an efficient circulation, so pressure can be maintained simply by the muscular action of the heart. However, in open circulation, हार्ट के अलावा ब्रीदिंग या लोकोमोटरी मूवमेंट्स भी लगेंगे फॉर मूविंग द सर्कुलेटरी फ्लूइड. ओके, रेगुलेशन और डाइवर्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम वन एरिया टू अदर, ये आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, तो मैं उसको कर रहा हूँ ग्रे. नाउ व्हाट दिस मीन्स फिर भी आप समझ लो. हमारे बॉडी में, आई होप यू नो दैट व्हेन वी डिसाइड टू रन, ऑटोमेटिकली ज़्यादा ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है एंड ज़्यादा ब्लड हमारे मसल्स में पहुंचता है, बिकॉज वहाँ के जो आर्टरीज होते दे विल एनलार्ज एंड सप्लाई मोर ब्लड. ना अगर ज़्यादा ब्लड वहाँ पहुंचाना है तो दूसरी कोई जगह पे ब्लड कम पहुंचाना पड़ेगा, विच मीन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी द ब्लड को कम पहुंचाना पड़ेगा. फॉर दैट वो अलग बॉडी पार्ट्स पे ब्लड वेसल्स को नैरो होना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, सो इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिस इज पॉसिबल बिकॉज ब्लड वेसल्स में बहुत सारे नर्व्स होते हैं एंड दे कैन डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, बट ये efficiency is not present in the open circulatory system. Okay, one minute. Now next is composition of the circulating fluid. Okay, now composition में दो चीज आपको याद रखनी है. In the closed circulation, the circulating fluid is inside the blood vessels. It never goes out into the tissues. Okay, so when you compare the composition of the circulatory fluid versus the composition of the interstitial fluid, मतलब tissue fluid, then you will find that it will be different because tissues में उसका composition अलग होगा और blood के अंदर अलग होगा, because they are two different fluids. However, open circulation में क्या होता है, circulating fluid ही खुद जाके tissues में जाता है. So the composition of the tissue fluid and the circulating fluid is same. Then color of the blood. Now usually in closed circulation the color of the blood is red. Now it is red क्यों होता है, because of hemoglobin. Hemoglobin is a iron containing pigment and iron oxide is red in color. So the color of the circulating fluid is always red. However, open circulation में usually the pigment either is absent, मतलब hemoglobin जैसा नहीं होता है, you know it is inefficient, या अगर होता है तो usually it is copper based pigment जो blue कलर में होता है. दैट इज वाई आप स्नेल को काटोगे तो उसका जो ब्लड निकलेगा वो ब्लूइश कलर का होगा. ओके, बिकॉज द पिगमेंट विच कैरीज ऑक्सीजन is not hemoglobin, it is not red in color. Okay, you must remember this. आप कॉकरोच को काटोगे तो कौन सा कलर का फ्लूइड निकलेगा, कॉकरोच को काटोगे तो कौन सा कलर का फ्लूइड निकलेगा, ब्राउन, ब्लैक, वाओ, वाइट, ब्राउन. मेजोरिटी क्या बोलता है, कभी कॉकरोच को मारा है क्या, किसी ने कॉकरोच को मारा है, कुचला है, तो फिर वेरी गुड. सुयश, कुचला था या सिर्फ मार के भाग गए थे, okay, if you have seen a crushed this thing cockroach for example, you will realize that the is white in color, whitish in color.
ओके, और इट इज कलरलेस बिकॉज ऑक्सीजन तो लगता है, लेकिन ऑक्सीजन कैरी करने के लिए देर इज नो पिगमेंट, देर इज नो हीमोग्लोबिन। फिर अर्थवर्म को काटोगे तो कौन सा कलर मिलेगा? अर्थवर्म को काटोगे तो कौन सा कलर मिलेगा? रेड। ओके, बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। वैसे ही आप कोई भी वर्टिब्रेट्स को काटोगे तो हमेशा आपको खून रेड मिलेगा, बिकॉज देयर रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इज रेड। वैसे ही आप मोलस्क को काटोगे तो यूजुअली ब्लड विल बी ब्लूइश इन कलर बिकॉज इट इज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोसायनिन। ये देखो यहाँ लिखा है हीमोसायनिन, दैट इज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। ओके, some animals like hemichordates and urochordates, they have another type of metal जो पिगमेंट बनाता है, दैट इज वेनेडियम। और वेनेडियम का जो पिगमेंट बनता है दैट इज ग्रीनिश इन कलर, ग्रीनिश इन कलर। सो आप जब यूरोकॉर्डेट को काटोगे तो ग्रीनिश टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड या ब्लड मिलेगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। यूरोकॉर्डेट मीन्स द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट्स। वो स्पॉन्ज जैसे दिखते हैं, एनिमल जैसे दिखते भी नहीं, फ्लावर वाज जैसे दिखते हैं, बट दे आर वेरी प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। हम जब एनिमल्स डिस्कस करेंगे दैट टाइम विल आई टेल यू इन डिटेल। ओके, दे आर मरीन एनिमल्स एंड दे आर फाउंड नॉन कॉर्डेट्स, मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स, जो प्रिमिटिव एनिमल्स। और कॉर्डेट्स मतलब जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है और आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बना, वर्टिब्रेट्स मतलब फिश लाइक एनिमल्स, लार्ज एंड फिश लाइक एनिमल्स। नो नो, यू वेट, आई विल टेल यू। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक में वही आने वाला है, आई विल टेल यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम जब करेंगे तो आप समझोगे। राइट नाउ होल्ड ऑन। ओके, so basically there are two categories of animals, non chordates and chordates. Okay, now ये difference इसलिए होता है because of important structure which is found in chordates, that is called the notochord. तो जो animals में notochord है they are called chordates, और जिसमें notochord नहीं है that they are called non chordates। और ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। ओके, एनीवे आई विल शो यू दैट व्हाट इज अ notochord. रुको, it is the last point which will help us in the basis of classification. अभी दिस इज अ टिपिकल कॉर्डेट एनिमल, इट इज अ फिश लाइक स्ट्रक्चर और ये होता है इन द सी। ओके, नाउ इसका बॉडी, यूजुअली कॉर्डेट्स का बॉडी लंबा और बड़ा होता है, एंड अगर बॉडी लंबा और बड़ा है तो पानी में बॉडी लपक सकता है। इट टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, उनके अंदर देर इज एन एंडोस्केलेटन, हार्ड एंडोस्केलेटन। ओके, लेकिन शुरुआत में ये स्केलेटन इन सम ऑफ द अर्ली कॉर्डेट्स it is not very hard. The endoskeleton means a central mid dorsal structure which is in the back of the animal, dorsal side, and that is a firm structure. तो जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं पानी में, फिशेज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, उनको उनकी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए होता है। ओके, सो एनिमल्स विच हैव अ नोटोकॉर्ड दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। लेकिन आप हेमिकॉर्डेटा तक देखोगे तो द एनिमल्स का बॉडीज एक तो स्मॉल होता है एंड दे डोंट रिक्वायर अ इंटरनल सपोर्ट, दे डू नॉट हैव अ नोटोकॉर्ड। ठीक है, सो एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ नोटोकॉर्ड आर नॉन कॉर्डेट्स, एनिमल्स विच हैव अ कॉर्डेट नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स आर मोर एडवांस एनिमल, और ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। एम्फियोक्सस इज अ वेरी वेरी स्मॉल कॉर्डेट, वन ऑफ द प्रोटोकॉर्डेट्स, वन प्रिमिटिव कॉर्डेट। तो यहाँ पे जो दिया है एग्जाम्पल, इट इज ऑफ एम्फियोक्सस, बट एनीवे हम वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है,
ये सेकंड चैप्टर नहीं है, ये फोर्थ चैप्टर है मेरे ख्याल से, एनिमल किंगडम। ठीक है श्रवणी, डज इट मेक अ डिफरेंस वो सेकंड चैप्टर है या फोर्थ चैप्टर है? आप बुक खोल के जब इंडेक्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, आई लव दैट यू आस्क क्वेश्चंस, बट ऐसे ही खामखा टाइम पास के लिए क्वेश्चन नहीं पूछने। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द back to the topic of circulation. So we were seeing the color of the fluid. हमने बोला usually closed circulation में circulating pigment होता है which is made up of iron, so it is red in color. Okay, then RBCs. RBCs मतलब red blood cells. So usually you will find that in the animals which have closed circulations they have RBCs, but annelids, except annelids, all animals with closed circulation मतलब the वर्टिब्रेट्स मीन्स वो कॉर्डेट्स जिसके अंदर आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनता है, मतलब आपके फिश, एम्फीबियंस, reptiles, mammals and aves, they are vertebrates. Okay, all vertebrates are basically chordates क्योंकि उनके एम्ब्रियो में शुरुआत में नोटोकॉर्ड बनता है और फिर नोटोकॉर्ड बदल के वर्टिब्रल कॉलम बनता है. ओके, सो RBCs are usually present in all animals with closed circulation because most of the animals जिसमें closed circulation होता है वो vertebrates होते हैं except in annelids. Okay, annelids में hemoglobin होता है, the blood is red, लेकिन hemoglobin is not inside the cells, it is not in the RBCs, it is dissolved in the plasma. So उनका जो पिगमेंट या हीमोग्लोबिन है वो RBCs के अंदर नहीं होता है, वो प्लाज्मा के अंदर मिक्स होके पड़ा रहता है, which means ऑक्सीजन भी जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो it will be transported via the plasma, not via the blood cells. ठीक है, एनिमल्स विच हैव ओपन सर्कुलेशन उसमें तो ब्लड सेल्स मिलेंगे ही नहीं, अगर उनके ब्लड में पिगमेंट है तो इट इज ऑलवेज बी डिजॉल्व इन द प्लाज्मा. ओके, देन नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई. तो आपको पता है क्लोज सर्कुलेशन में इट हैपन्स बाय डिफ्यूजन. गौरी, वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम, कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है. सो in animals with closed circulation, the oxygen and nutrient is supplied by diffusion from the capillaries. ये हमने डिस्कस किया है. But in animals with open circulation, the tissue fluid directly is in contact with the uh, cells and tissues. So they get the oxygen and the nutrients directly. They don't require diffusion by capillaries. Okay. Now capillary and vein system क्लोज सर्कुलेशन में होता है और ओपन सर्कुलेशन में एब्सेंट होता है. हाउ डज द फ्लूइड रिटर्न टू द हार्ट? क्लोज सर्कुलेशन में वो वापस जाता है थ्रू द वेन्स, लेकिन इन द ओपन सर्कुलेशन इट गोज बाय द ऑस्टिया दैट इज इन द होल्स इन द हार्ट. सो फ्लूइड वेन्स के थ्रू नहीं जाएगा, वापस डायरेक्टली इनटू द हार्ट जाएगा. इम्यून सिस्टम, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल. राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग. लास्ट इज द कंपोजिशन. क्लोज सर्कुलेशन यूजुअली एडवांस्ड एनिमल्स में होता है, तो उसका कंपोजिशन इज लिटिल कॉम्प्लेक्स. एंड ओपन सर्कुलेशन में इट विल बी अ लिटिल सिंपलर, बट ये पॉइंट आपको बाद में समझेगा. तो ये जो लास्ट दो पॉइंट है ना, हम जब सर्कुलेशन करेंगे एंड इम्यूनिटी करेंगे तब आपको समझेगा. तो राइट नाउ आई एम मेकिंग इट स्मॉल. ओके,
You don't have to study these 2 points right now. Ostia is not present in all invertebrates. No. Ostia are present in only those invertebrates जिसके अंदर circulatory system हो and अगर वो open हो. So there has to be a circulatory system and it has to be of the open type. So which animals have a circulatory system which is open type? बोलो, अभी हमने डिस्कस किया. ये एनिमल्स में ओपन सर्कुलेशन होता है, तो इनके हार्ट्स में वो होल्स होता है. ओके, ऑस्टिया. But if there is a closed circulation, then you do not require ostia. Okay. So today we are ending. अभी हमारा last topic बचा है notochord from this topic that हम next time करेंगे. But today I am going to send you assignments, questions. Except some questions, most of the questions will be one line, one word, all that. But you have to do the A. यहाँ पे देखो, your teacher cannot help you. अगर आप असाइनमेंट नहीं करोगे तो आपके डिजिटल रिकॉर्ड में ऑलरेडी चला जाता है. ओके, ऑलरेडी चला जाता है. एंड द गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इंटरनल मार्किंग नाउ, बिकॉज आपके इंटरनल मार्किंग पे आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है. एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके इंटरनल मार्किंग पे जाएंगे. सो एंड मेनली दैट विल बी डिसाइडेड 50% बाय योर असाइनमेंट्स एंड 50% फॉर थ्रू द टेस्ट का स्कोर्स. बट एटलीस्ट 50% आपका असाइनमेंट्स पे जाएगा. ओके, सो आई विल सेंड यू द असाइनमेंट्स. मैंने आपको नोट्स भेज दिया है. यू हैव टू write the assignments, and remember the main purpose of doing the assignment is that आप लोग ध्यान से चैप्टर पढ़ोगे. चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपके सब असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे. सो नो अवॉइडिंग दिस. ठीक है. सो सी यू, बाय बाय. एग्जाम के पहले शायद मैं आपको 10-15 मिनट का छोटा सा सेशन लूंगा टू हेल्प यू राइट द एग्जाम. ओके, बट टेक द एग्जाम सीरियसली. अच्छी तरह पढ़ो. मेनली आप नोट्स पढ़ो तो हो जाएगा. ओके, बाय बाय, सी यू.